ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। My dear souls, may God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from death to immortality. May He shower upon you all His divine grace. May He bestow upon you all His divine love and wisdom. As you know, I am a religious teacher. Real meaning of religion is religio, turn to cause. Re means turn, legio means cause. This is the root word of religion. Cause of life is supreme cause, supreme consciousness. That very supreme consciousness is enlightening mind stuff of all beings and giving life. That very life appear in our heart in the form of love, and that become root cause of many kinds of desire. And that desire become cause of our action, and action become cause of our happiness and suffering both. And that action become cause of our birth and death both too. Purpose of human life is to be free from this cycle and try to elevate yourself from nature and achieve unity with Supreme Consciousness. Purpose of religion is to realize that Supreme Consciousness, which is the source of life, root cause of life, and be one with that, and be free from suffering. As we all are sitting here, but receiving life energy from one source, and that source is infinite. Not only one religious person or divine person, but demonic person also is receiving same life energy from same source. It means there is no discrimination in that infinity. And that very infinity is the root cause of diversity.
When you will pay your attention into infinity, you will realize unity in diversity. But if you will pay your attention in diverse form, then you will see numerosity and limitations and so many other things, and due to that you will suffer in this universe. So purpose of religion is to realize unity in diversity. I am teaching this philosophy. How one can realize unity in diversity? As I told you that source of life is one, there is no discrimination. Either you are divine person or demonic, but that infinite power is giving life energy to all. In the same way, root cause of our consciousness is one. That is called Godhead. Some people call different name. As a Allah, as a Khuda, as a God, as a Yahuwah, as a Om, as a Rama and Krishna and so many names. According to their own language, they give name to that supreme cause. And according to their own state of mind, they are trying to achieve that unity with that supreme cause. Because you know and I know also that time never will come on the earth when every person has same state of mind or state of intellect. Same state of mind, same state of intellect is not possible in this universe. Because though supreme consciousness is one, infinite, absolute, but that appear through different mind stuff. And mind stuff is the cause of or effect of nature. Nature has three attributes. As you know, causal, subtle and gross. In our language that is called Sato Guna, Rajo Guna and Tamo Guna. That three gunas are three attributes as a solid, liquid and gases creates differentiation. Due to that, person has different state of mind, state of intellect. And every person is thinking, speculating, and working according to that. So be aware about this truth. In faith, in speculation, in action, diversity is destiny. That always will exist on this humankind. But if you will pay your attention on that root cause of life, and you will try to avoid all these differentiation, whatever are related with nature, then you will realize unity in diversity. Because unity is related with your real self. And your real self is not body, not senses, not mind, not intellect too, not egotism too. That is only pure consciousness. That very pure consciousness is one absolute infinite. You know very well that infinity can't be divided.
that is beyond division and beyond discrimination too. So that is our root cause of life. So if you will pay your attention on your root cause of life, and you will see that all mind stuffs are enlightened by one supreme consciousness, then you will realize unity and diversity. Otherwise, if you will count this physical structure and color and form, then you will see only numerosity, you will see only differentiation. And you will never find unity. If you are not seeing unity in diversity, then I don't think that you will be free from suffering. And I don't think that you will be free from doubts. If you have doubt, if you will suffer, then birth and death, this eternal cycle will be continuous. Due to that, real religion always direct or indicate humankind to be one or achieve unity with your root cause. Realize that truth. So my philosophy is see unity in diversity. All limitations, all barriers, all differentiations are only projection of impure wisdom, impure mind. If you will make your mind pure, your wisdom stable and sharp, you will see that truth and you will realize unity in diversity. And really your heart will be vessel of law of divine. So this is my ideology. And now, you know that those people who are sitting here, they are looking me because they don't know, mostly they don't know this language, whatever I am using now. So may God bless you all. I will talk with you people after that. But now I will use my own language and I will try to fulfill their own demand. Thank you very much. May God bless you all. बोलिए गुरुदेव की। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज बहुत दिनों बाद इस क्षेत्र के लोगों के मध्य में मेरा आना हुआ और आप में से बहुत लोग पहले भी मुझे सुन चुके होंगे, नहीं डायरेक्ट मुझे सुने होंगे तो मेरे शिष्यों को सुने होंगे या मेरे कैसेट सुने होंगे। आज जो यहाँ विषय रखा है मंत्र और इष्ट, ये तो साधना का विषय है, समाज का विषय नहीं है। कल का जो विषय था अहिंसा और गीता, वो समाज का विषय था और आज का विषय जो है ये व्यक्ति का विषय है। क्योंकि हमारी विचारधारा में व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं
और ये सभी एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इसलिए व्यक्ति के लिए जो कुछ उपयोगी है वही परिवार के लिए है, वही समाज के लिए है, वही राष्ट्र के लिए भी है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इस संबंध में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। पहले यह समझना चाहिए कि इष्ट किसे कहते हैं, इष्ट देव का अर्थ क्या होता है। ये ईह धातु है व्याकरण की, जिससे इष्ट शब्द बनता है। ईह माने होता है अंतर की चाह। फिर इसे समझ लो, ईह माने होता है अंतर की चाह। ये इच्छा शब्द भी इसी से बना है। और अंतर की चाह जिसकी होती है हमें, वो हमारा इष्ट होता है। अंतर की चाह किसकी है, हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसका यानी निरूपण करना चाहिए, अपने जीवन में इसकी खोज करनी चाहिए कि आखिर हमारी आंतरिक डिमांड क्या है। जब आंतरिक मांग की खोज होगी तभी आप अपने सही इष्ट देव को पहचान पाएंगे, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे। और प्रकारांतर से जितने दुनिया में मनुष्य हैं, सभी के अंतर की चाह 3 रूपों में अभिव्यक्त होती है। सबसे पहली चाह है कि मैं मरूं न कभी, यही ना? मरना चाहता है कोई? राजी से तो नहीं मरना चाहता, मजबूरी में भले मरे। एक कहानी हमने सुनी थी बच्चेपन में कि एक बूढ़ी मां थी, उसके परिवार में कोई नहीं था। सब पहले ही महामारी पहले आती थी, प्लेग कहते थे उसे भारत में, उसमें सब मर चुके थे, अकेली रह गई थी। तो वो जंगल में कंडा बीन करके इकट्ठा करके गोबर जिसे कहते हैं, और उसकी पाथी बना ऊपरी बना करके वो बेच करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। जब बहुत बूढ़ी हो गई तो जंगल से उसने पशुओं के गोबर तो इकट्ठा किए, टोकरी में भर लिया, उठाने लगी तो नहीं उठा। तो दुखी होकर के प्रभु से पुकारा, हे प्रभु, यदि मेरी मौत आ जाती तो मैं अपने इस दुखी जीवन से मुक्त हो जाती। भगवान बड़ा दयालु है, कभी किसी की बात सुन लेता है। भगवान ने कहा, भाई ये बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से मौत को मांग रही, तो जाओ भाई मौत तुम इसकी। इतने में मौत आकर खड़ी हो गई। जब मौत खड़ी हो गई तो उसने पूछा कि बहन तू कहां से आई है? मौत कहे कि हमें भगवान भेजनी। कहा केथा बदे? कहा तो लई जाएगी बदे। तू पुकारियो नहीं भगवान के कि हमारे लिए मौत भेज दे? तो कहे तू मौत है? बोले हाँ हम मौत है। अरे कहे हम तो गोहा उठाए बदे उठाए बुलाए। कहे हम तो है गोबर उठाए बदे बुलाए रहे हैं, ये गोबरवा उठाए के हमारी मुड़िया पर रखते। क्या समझो? जाने के लिए तैयार नहीं, गोबरवा उठावा चली जाती। यानी भगवान का भेजा हुआ वह वरदान उसे स्वीकार नहीं। कोई आसानी से मरना पसंद नहीं करता। कहने का अभिप्राय क्या है जानते हो? मृत्यु क्यों प्रिय नहीं है? इसलिए कि मृत्यु हमारा अपना धर्म नहीं है। मृत्यु हमें क्यों प्रिय नहीं है? मृत्यु हमारा अपना धर्म नहीं है। तो मृत्यु से भय क्यों होता है? कहा जैसे धन के नाश से भय होता है। अब इधर तो आप लोग बाहर रहते हैं, यहां तो चिंता नहीं है, लेकिन जिन शहरों में यह चिंता है कि घर में ताला लगा कर गए और दिन में ही लोग शीशा तोड़कर लूट ले जाते हैं, तो बैठे होंगे सत्संग में, लेकिन चिंता होगी उनकी वहां पर कि पता नहीं कोई शीशा तोड़ने वाला तो नहीं आ गया। तो वहां धन तो नहीं है ना, धन है। जिसमें आसक्ति होती है उसके नाश की चिंता हो जाती है। क्या समझे? जिसमें आसक्ति होती है उसके नाश की चिंता हो जाती है। इसलिए जिसकी तन में आसक्ति हो गई वो तन के नाश की चिंता करता है, मरू न।
लेकिन स्वभावतः हमारा जो जीवन है, जो तत्व है, आत्म तत्व है, वो तो अमृत है, वो मृत्यु का ग्रास नहीं होता, इसलिए उसे मृत्यु प्रिय नहीं है। किसी से कहो कि तुम अमर रहो, खुश हो जाता है, लेकिन जिसे कह दो जाओ तुम मर जा, फिर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वज्र मार दिया हो। तो मरना उसका धर्म नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात तो अमरत्व की चाह हर एक के जीवन में है, वो हमारी आंतरिक मांग है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, वो हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। क्या? अमरत्व। उपनिषद की एक कथा है, याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे, महान तत्ववेत्ता। उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थ करके विपुल संपत्ति अर्जित की थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि ये सारी संपत्ति व्यर्थ है, क्या करना लेकर, हमें सन्यासी बनना है। सन्यास लेने के निश्चय करके उनकी दो पत्नियां थी, दोनों को बुला लिया, कात्यायनी और मैत्रेयी। अपनी सारी संपत्ति को दो भागों में बांट दिया और दोनों से कहा, देवियों ये तुम्हारा तो अपना अपना हिस्सा है, तुम ले लो। कात्यायनी कुछ नहीं बोली, अपना हिस्सा लेकर खड़ी रही मौन होकर। मैत्रेयी से नहीं रहा गया, उसने पूछा कि ये हमें क्यों बांट रहे हो, क्या बात हो गई? कहा, देवी अब मैं परिव्रज्या ग्रहण कर रहा। मैत्रेयी सोचने लगी कि हम दोनों, इनकी पत्नियां बड़ी साध्वी, बड़ी सेवा करने वाली, अनन्य भक्ता है इनकी, और फिर भी ये हम लोगों को त्याग करके, इतनी संपत्ति त्याग करके कहीं जा रहे हैं, तो जहां जा रहे हैं वो जरूर इससे महान होगा। क्योंकि मनुष्य की ऐसी वृत्ति है, जब तक अपनी अवस्था से अधिक उसको न मिलता हो तब तक वो उस अवस्था का त्याग नहीं करता, हमेशा अधिक के लिए त्याग करता है। मैत्रेयी ने पूछा, भगवान इसका अभिप्राय कि आप जिस परिव्रज्या को लेने जा रहे हो वो इससे भी महान सुखद है? याज्ञवल्क्य ने कहा, वो तो सुख का समुद्र है। कहा, भगवान तो हमें इस धन से क्या मिलेगा? कहा कि इस धन से जो तुम चाहोगे मिल जाएगा। कहा, क्या मैं इस धन से अमर हो जाऊंगी? उन्होंने कहा कि ये तो असंभव है। धन तुम्हें सुविधा देगा। धनी आदमी के पास सुंदर मकान होता है, सुंदर बिस्तर होता है, सुंदर खाने पीने की चीजें होती हैं, सुंदर सामग्री होती है, लेकिन उसे सुख मिलेगा ऐसी बात नहीं, वो अमर हो जाएगा ऐसी बात नहीं। मैत्रेयी ने उसी समय सारी संपत्ति के ढेर को लात मारते हुए उसने घोषणा की, जो हमारे यहाँ वेदांत दर्शन की सबसे बड़ी घोषणा मानी जाती है, एन हम न अमृता श्यामा हम तेन किम कुर्या। अरे उसने कहा कि जो पदार्थ हमें अमृतत्व प्रदान नहीं कर सकता उसको लेकर मैं क्या करूंगी, इसलिए इसको मैं त्याग करती हूं। हम तो आपके पास अमृतत्व लेने आए थे, यदि आप मुझे अमृतत्व दे सकते हो वो दीजिए, हमें मृत पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। मैत्रेयी के कहने पर याज्ञवल्क्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैत्रेयी तू धन्य है, मैं जानता था तुम्हें, और अब तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें वह विद्या दूं जिससे तू अमर होगी। वहां पर आत्मज्ञान का उन्होंने उपदेश दिया। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद का महान श्रेष्ठतम रत्न है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि अमृतत्व जो है वही जीवन का एक आंतरिक मांग है, इच्छा है। लेकिन किस प्रकार का अमृतत्व चाहिए आपको? जो प्रकाश युक्त हो, अंधकार युक्त नहीं चाहिए। ऐसे जीवन को प्यार नहीं करता कोई जो अंधकार में हो, प्रकाश में जीवन चाहिए उसे। अमृतत्व की चाह है वह प्रकाश में, प्रकाश का ही दूसरा नाम ज्ञान है। और तीसरी उसे चाह है रस की। वह ज्ञान में, प्रकाश में जो जीवन मिले वो सूखा न हो, निरर्थक न हो, रूखा न हो, वो सरस हो, उसमें मधुरिमा हो,
अब इन तीनों का एक नाम रख दिया गया सच्चिदानंद। क्या नाम रखा गया? सतचित आनंद। अमरत्व का नाम सत है, ज्ञान का नाम चित है और रस का नाम आनंद है। अब हर एक व्यक्ति की आंतरिक चाह क्या हुई? सच्चिदानंद। आप जो भी काम करते हैं, खाने पीने ही नहीं, यहां तक कि जो सोते हैं, जागते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, उसके पीछे भी यही चाह है कि आपको सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाए, आपको नित्य जीवन मिल जाए, रसमय जीवन मिल जाए, ज्ञानमय जीवन मिल जाए। आप अपने सारी क्रियाकलापों को देखिए, सवेरे से शाम तक आपकी क्रिया या तो सत के लिए, या चित्त के लिए, या तो रस के लिए होती है। या जीवन की रक्षा के लिए आप काम करते हैं, मरू ना, या कुछ ज्ञान मिल जाए। जैसे आप लोग अपने अपने घर छोड़कर यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए ना, वहां जाएंगे तो बाबूराव स्वामी आए हमें ज्ञान देंगे, ज्ञान के लिए। और ऐसे रस के लिए आप काम करते हैं, तो या तो ज्ञान के लिए, या रस के लिए, या जीवन के लिए। तीसरी चौथी और कोई चाह नहीं है दुनिया में। जितने अन्य साधन है सब इन्हीं तीनों को प्राप्त करने के लिए। ये पूरा एनालिसिस करके, निरूपण करके ये निश्चित किया गया है कि मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र की चाह है सतचित आनंद। इसको कहते हैं इच्छा, इहा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपके अंतर की चाह क्या है? सतचित आनंद। तो आपका इष्ट देव कौन हुआ? सतचित आनंद। दुनिया में आपके ही नहीं, जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों का इष्ट एक है। क्या आप समझते हो कि चींटी मरना चाहती है? आप देखो जरा, धीरे धीरे उसे मार करके, ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को बचाएगी, भगेगी, छुपेगी। कोई मरना नहीं चाहता। और वो भी तलाश में होती है। किसकी तलाश में होती है? कहीं से गुड़ मिल जाए, कहीं से मीठा मिल जाए, शक्कर मिल जाए, अच्छी चीज जो उसको प्रिय है, उस रस की तलाश में होती है वो। और रस की तलाश में वो ज्ञान के प्रकाश में होती है वो। आप कहीं भी दूर से दूर चीनी रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, वहां भी घूमती हुई पहुंच जाएगी। सारे, अब कीड़ी से, चींटी से और छोटा जंतु क्या होगा? उसको भी सच्चिदानंद की तलाश है। इसलिए जीव मात्र का अभिष्ट जो है, अभिष्ट, वह सच्चिदानंद है। और उस सच्चिदानंद का एक नाम है परमात्मा। उसी को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। जीवन का मूल कारण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। जीवन का मूल कारण सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। जहां सीमा आई वहीं पर दुख शुरू हुआ। सारा दुख सीमा में है। इसीलिए वेद कहता है भूमा एव सुखम न अल्पम। आपको सुख मिलेगा भूमा में। भूमा माने अनंत में। और अनंत का ही दूसरा नाम है आनंदम। वेद में बताया गया है अनंतम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। आनंद शब्द का जहां पर प्रयोग होता है वहां अनंत के लिए होता है। लिमिटेशन जहां है वहीं बंधन है, वहीं सीमा है, वहीं दुख है। और जहां भूमा हुआ वहीं सुख हुआ, वहीं आनंद हुआ, वहीं अमृत है। क्योंकि अमृत जो है वो लिमिटेड नहीं है, वह अनंत है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि पहले आप ये निश्चय कर लो कि आपका इष्ट देव कौन है, समझ लो उसे। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी काकिनी ये आपका इष्ट देव नहीं हो सकते। सच्चिदानंद के सिवा मनुष्य का कोई इष्ट देव नहीं हो सकता। देव शब्द का अर्थ होता है प्रकाशक, दिव्य प्रकाशनी। इष्ट देव का अर्थ होता है वह अभिष्ट जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सके, उसको कहते हैं इष्ट देव। बात समझे? तो इष्ट देव को समझ लेने के पश्चात अब उसकी आराधना की बात आई। तो उसकी आराधना हम क्यों करें भाई? इसलिए कि हमारी वो चाह है। आराधना माने क्या होता है?
जिसके ऐसा बनना, जिसकी आप चाह रखते हो, उसको पाने के लिए तो प्रयत्न करते हो ना। आराधना माने प्रयत्न हुआ। इष्ट देव की आराधना का अर्थ हुआ इष्ट देव को पाने का प्रयत्न, अपनी अभिष्ट की पूर्ति का प्रयत्न, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न। ये बात समझे? ये इष्ट देव के पाने का अर्थ हुआ, इष्ट देव की आराधना का अर्थ हुआ। अब इष्ट देव की आराधना के लिए शास्त्रकारों ने कहा कि भाई, यदि तुम अपने अभिष्ट को पाना चाहते हो तो हर एक अभिष्ट की पूर्ति के लिए कुछ तरीके हैं, प्रक्रियाएं हैं, और उन प्रक्रियाओं की विद्या जो है, उस विद्या का नाम है मंत्र। बात समझे? वो विद्या जहां निहित है उसको मंत्र कहते हैं। जब तक तुम अपने अभिष्ट को पहले निर्णय नहीं किए, इष्ट देव कौन है इसको नहीं समझे, तो मंत्र कहां से समझोगे तुम? और मंत्र का प्रयोग क्या करोगे तुम, कैसे करोगे तुम? इसलिए पहले तो इष्ट देव को समझो और फिर इष्ट देव को पाने के रास्ते को समझो। पहले तुम्हें पता ही नहीं है कि कहां जाना है, तो टिकट कहां खरीदोगे? जाकर स्टेशन को, कि स्टेशन का मास्टर जो है कि बाबू हमें टिकट दे दो, वो पूछेगा कहां जाना है, कहो गाड़ी पर जाना है। अरे भाई कहां जाना है? अब कहां जाना है जब तक नहीं बताओगे तो गाड़ी पर जाने का टिकट क्या देगा वो बताओ? दे सकता है क्या? असंभव है। इसलिए पहले आप निश्चय तो करो कि आप पाना किसे चाहते हो। हाँ, यदि आप अपना इष्ट देव धन को बना रखा है, तन को बना रखा है, दुनिया के किसी और पदार्थ को बना रखा है, बाबा दया कर दो हमारा दुख चला जाए, बाबा दया कर दो हमारा रोग चला जाए, बाबा दया कर दो मेरी संतान सुखी हो जाए या हमें संतान मिल जाए, बाबा दया कर दो हमें कुछ पैसे मिल जाए, हम बड़े दुखी हैं। यदि तुम्हारे यही इष्ट देव हैं, फिर किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, इसका मंत्र अलग है। और ये इष्ट देव नहीं हो सकते, इष्ट तो हो सकते हैं। धन इष्ट हो सकता है लेकिन इष्ट देव नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो अंधेरे में ले जाता है, प्रकाश में ले जाए तब तो देव बने ना। क्या समझे? धन तुम्हारा इष्ट हो सकता है लेकिन इष्ट देव नहीं हो सकता। इष्ट देव माने अंतर प्रकाशित करने वाला, देव माने प्रकाशित करने वाला। तो वो धन तो अंधेरे में ले जाता है, क्योंकि धन की अधिष्ठात्री देवी जानते हो कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और उल्लू दिन में देखता ही नहीं, वो तो अंधेरे में ही देखता। इसलिए लक्ष्मी के दो भाई हैं और दोनों उसे प्रिय हैं। कौन कौन है भाई जानते हो? विष और मदिरा। ये दोनों उसी समुद्र से उत्पन्न हुए जहां से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। और उसकी एक सेविका है लक्ष्मी की, वो भी उसी समुद्र से निकली है, उसका नाम है रंभा माने वेश्या। इसलिए जहां लक्ष्मी जाती है तहां सब अपना परिवार ले जाती है। इसलिए हमेशा याद रखो, जीवन को उत्तम बनाने के लिए पहले इष्ट देव को समझो। और ये निश्चित मत है जो मैंने बताया है कि मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र का इष्ट देव है सच्चिदानंद। वह मृत्यु को पसंद नहीं करता, अज्ञान को पसंद नहीं करता। किसी महाअज्ञानी को कहो कि तू मूर्ख है, तुरंत डंडा उठा लेगा। तू कैसे कहता है? तेरी साथ मूर्ख हो सकती है, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूं? उसे मूर्खता से प्रिय नहीं है। अभी मरने वाला है, लेकिन यदि कह दो कि भाई इनकी जिंदगी तो खतरे में है, मरने वाला है, तो कहेगा मर तू, मैं क्यों मरूं? तो मृत्यु प्रिय नहीं है, अज्ञान प्रिय नहीं है और दुख प्रिय नहीं है। ये तीनों प्रिय नहीं है। इसलिए हमारा अभिष्ट है सच्चिदानंद, अमरत्व, ज्ञान और रस। ये हमारे जीवन की आंतरिक मांग है और उसी का नाम है परमात्मा। सच्चिदानंद को ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन।
वेद की घोषणा है कि सच्चिदानंद ही ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए उस ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या का नाम है मंत्र। ये बात समझे? अब वो विद्या कैसे प्राप्त की जाए? तो विद्या तो वही प्रदान कर सकता है कि जो उस विद्या को जानता हो। हमारे यहां जितने मंत्र हैं, सभी मंत्रों का अर्थ परमात्मा ही होता है और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। प्रकारांतर से कुछ तो डायरेक्ट होता है, कुछ प्रकारांतर से होता है, इनडायरेक्ट होता है, लेकिन अर्थ उनका परमात्मा ही है। ये जितने अक्षर हैं, अक्षर जानते हो? अक्षर, मंत्र किससे बनते हैं? अक्षर से। ये तो सुना होगा ना। और अक्षर माने क्या? अक्षर, अक्षर माने न क्षरति इति अक्षर, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। क्षर माने नाश, और अक्षर माने माने नहीं, जिसका नाश नहीं है उसको कहते हैं अक्षर। और कोई भी मंत्र बिना अक्षर का बन सकता है क्या? क्या रहा आप लोग? बिना अक्षर के कोई मंत्र बनाकर बता दो मैं तो, ये तो असंभव है। कहा जब प्रत्येक मंत्र का मूल आधार अक्षर है, तो अक्षर एक है या अनेक है? अक्षर एक है। हमारे यहां व्याकरण शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि अक्षर एक है। कहा जो अनेक रूपों में प्रकट होता है वो, कहा वो तो स्थान भेद से। अक्षर क्या है? अक्षराणाम अकारोस्मि। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने ये बात समझाई कि अक्षरों में आकार मैं हूं। तो बिना आकार का कोई अक्षर बोलकर बताओ तो आप मुझे, किसी अक्षर को बोलो बिना आकार का, बोल सकते हो? असंभव, उसको असंभव कहते हैं। बिना आकार का कोई अक्षर नहीं है। आकार ही यदि कंठ से बोला गया तो क बन जाता है, और तालु से बोला जाए तो च बन जाता है, मूर्धा से बोला जाए तो ट बन जाता है, दांत से आ कहो तो त बन जाता है। ये बात समझे? और उसी को थोड़ा सा बदल कर कहो तो वो ग बन जाता है। वही महाप्राण के साथ हो जाए तो क का ख बन जाता है, और थोड़ा सा स्थान भेद हो गया तो ग बन जाता है, छ बन जाता है, ज बन जाता है। इन जितने अक्षर बनते हैं ये सारे के सारे अ ही बनता है स्थान भेद से। तुम ओठ से प कहो, अ कहो तो प बन जाएगा। ओठ से अ कहो, कहकर देख लो, तुरंत प निकलेगा, अ नहीं निकल सकता। तालु से तुम अ कहो, च निकलेगा, अ नहीं निकल सकता। अक्षर एक है, एक ही अक्षर के हमारा जानते हो कितने भेद हैं? 64। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, समस्त भाषाओं से क्लिष्टतम भाषा है वैदिक संस्कृत। उसमें 64 ध्वनियां हैं, 64, एक दो नहीं। जैसे अंग्रेजी में 26 है, ऐसे उसमें 64 हैं। लेकिन 64 का मूल एक है, अ के ये सारे वेरिएशन है, क्योंकि वो अक्षर है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक मंत्र का मूल आधार क्या है? अक्षर। अक्षर माने न क्षरति इति अक्षर, और जो अक्षर है वो तो परमात्मा है। अक्षर ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अक्षर को ही तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को ही अक्षर कहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा अक्षराणाम अकारोस्मि। अब आप समझ गए होंगे कि मंत्र और अर्थ का क्या संबंध है आपस में। अब मंत्र में जो वेरिएशन है, जैसे मैंने बताया स्थान भेद से अ का ही अलग अक्षर बन जाता है, इसी रूप से भाव भेद से, चित्त की अवस्था भेद से, अभी जैसे मैं अंग्रेजी में इन लोगों को समझा रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि सारे मनुष्यों की बुद्धि एक सी हो जाए, और दुनिया में कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि सारे मनुष्यों का मन एक सा हो जाए। असंभव है। क्यों असंभव है भाई? इसलिए कि मन और बुद्धि ये जो है ये प्रकृति के परिणाम है, और प्रकृति में 3 गुण है, सत रज और तम।
और जिसका ज्यादा प्रभाव है उस प्रकार का उसका मन बनता है, उसकी बुद्धि बनती है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि बुद्धि के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। मन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। जितने तुम्हारे क्रियाकलाप हैं तीनों के, यानी एक के 3 भेद हो जाते हैं। और संस्कृत में 3 का अर्थ होता है अनेक। बात समझे? संस्कृत में एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। बहुवचन माने बहुवचन में सर्वा आ गया, वहां सर्वाणी आ गया, सर्वम सर्वे सर्वाणी हो गया। सर्वाणी माने ये नहीं हो कि सर्वाणी माने 3, यानी यदि 3 हो गए तो 3 जगह यदि 3 लाख है तभी सर्वाणी हो जाएगा। 3 करोड़ हो जाए तभी सर्वाणी हो जाए, 3 अरब खरब हो जाए तभी सर्वाणी रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आया। और 3 रहेंगे तभी सर्वाणी होगा। ये बात समझे? 3 माने अनंत। तो ये 3 गुण जो हैं, ये 3 गुण माने उनके अनंत वेरिएशन, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। और उसी से सबके मस्तिष्क बने हुए हैं। तो जिस प्रकार के जिसके मस्तिष्क की स्थिति होती है, वैसे वह अपने इष्ट देव के विषय में सोचता है। हमें जब मेरे गुरुदेव साधन की बात समझा रहे थे तो उन्होंने कहानी सुनाई। कहा एक भारत में जाट आप लोग जानते हो, पंजाब में होते हैं, हमारे गुजर होते हैं, जाट होते हैं, उनका काम है खेती करना। लेकिन खेती करते हुए वो भैंस पालते हैं और भैंस का दूध पीते हैं। भैंस के जो यानी भैंसा जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, उसको पंजाब में झोटा कहते हैं। छोटा होता तो कट्टा कहते हैं। तो उसको बड़े प्यार से पालते हैं और सजाते हैं, उनके सींग तेल लगा कर इसे। तो वो एक जाट चला गया किसी महात्मा के पास, कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। महात्मा ने कहा कि अच्छा तुम ध्यान किसका कर सकते, तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, यथाभिमत ध्यानाद् हुआ। कहा तुम्हें सबसे प्रिय कौन लगता है? वो कहता सही बताओ। बोले हाँ। कहा मेरा झोटा। झोटा माने भैंसा। मैं अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार अपने भैंसे को करता हूं। महात्मा ने कहा कि ऐसा करो कि तुम इस कोठरी में बैठ करके यहाँ भैंसे का ध्यान किया करो। तुम यथाभिमत ध्यानाद् हुआ। उसे 40 दिन का व्रत दे दिया और कोठरी में बंद कर दिया। और उसके लिए जगह बता दी कि यहाँ से तुम्हें खाना पीना हम पहुंचाया करेंगे। मलमूत्र त्याग का भी वहां पर व्यवस्था थी। साधना की कुटिया जो बनती है से होती है, अंदर का अंदर आदमी रहे, अपना जीवन चला। वो बैठ गया वहां और अब उसको मंत्र बताया कि इस मंत्र का जाप करो और तुम अपने झोटे का, भैंसे का ध्यान करो। 40 दिन में उसकी ऐसी वृत्ति हो गई कि ऐसा उसे अनुभव होने लगा कि वो भैंसा के साथ तादाद में हो गया। तादाद। 40 दिन बाद जब उसका व्रत पूरा हुआ तो महात्मा जी, उसके गुरु जी आए। कहा बेटे आज तुम्हारा व्रत पूरा हो गया? कहता हाँ गुरुदेव। कहा अब तुम बाहर आ जाओ। जब बाहर निकलने लगे तो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। महात्मा जी ने कहा बाहर आ जाओ, क्यों खड़े हो? कहता मेरे सींग अड़ रहे हैं दरवाजे में। मेरे सींग दरवाजे में अड़ रहे हैं। महात्मा जी समझ गए साधना इसकी पूरी हो गई। उन्होंने उसको पकड़ा और एक झटका दिया। जब बाहर आया तो बाहर आते ही उसको समाधि लग गई, क्योंकि सींग की तो भ्रांति थी ना। ये चित्त को एकाग्र करने की व्यवस्था थी। ये पतंजलि ने अपने यहाँ अपने योग शास्त्र में यथाभिमत ध्यानाद् वा ये सूत्र लिख करके बताया है कि तुम्हें जो प्रिय लगता है उसका तुम ध्यान करो। कौन प्रिय लगता है ये तुम जानो, और उसका ध्यान करते करते तुम्हारा चित्त जब एकाग्र हो जाएगा तो अपने आप वो परमात्मा में चला जाएगा। क्योंकि सारे रूपों में परमात्मा ही तो है, और कौन सा है। नामदेव ने कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर लिया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। गधे में से भगवान को प्रकट कर लिया था। इसलिए ये शास्त्र में समझाया गया कि सर्वरूप में एक ही सत्ता है, वहां कोई भेद नहीं है। लेकिन उस सत्ता को हर एक व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार, अपने चित्त की अवस्था के अनुसार देखता है। इसलिए उसके लिए जैसे रूप में भेद हो गया है तो रूप के साथ अक्षर में भी भेद हो गया, और अक्षर में भेद होकर के मंत्र में भेद हो गया। अब आपने अपने रुचि के अनुसार
इष्ट चुना। हमारे यहां पंचदेव उपासना की प्रक्रिया है। पंचदेव उपासना, पंचदेव उपासना में 5 प्रकार के देवों को स्वीकार किया गया है। 5 प्रकार के देव क्यों स्वीकार किए गए? 7 क्यों नहीं किए गए? 10 क्यों नहीं किए गए? 5 ही क्यों किया गया? 4 क्यों नहीं किए गए? 3 क्यों नहीं किए गए? इसका भी अभिप्राय समझ लो। आप लोग जानते हो, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए 5 अवयव होते हैं, छठा नहीं होता, 5। जैसे आपने पहले सुना बावरा नाम के कोई महात्मा हैं, सुना, ये हुआ नाम। सुनकर के जब हाल में प्रवेश किया तो देखा मुझे बैठे, तो कहा कि ये है बावरा। क्या देखा आपने? रूप। पहले नाम सुना, फिर रूप देखा। फिर जब मैं व्याख्यान देने लगा तो आपने देखा कि ये तो ज्ञानी है। अब आपने मेरा ज्ञान भी देख लिया, लेकिन बोलते समय यदि मैं ऐसे बोलता भाई मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो आप क्या सोचते? ये है तो ज्ञानी, लेकिन मुर्दे है, दम नहीं है, दम नहीं है ना। लेकिन आपने जब मेरी आवाज सुनी तो बोले कि बड़ा फोर्सफुल बोलने वाला भाई, तो पावरफुल आदमी है, उसकी वाणी में शक्ति है। क्या देखा? शक्ति। अब ये 4 चीजें तो आपने देख लिया मेरी। नाम सुन लिया, शकल देख लिया, ज्ञान देख लिया और शक्ति, फोर्स देख लिया। लेकिन इन चारों के परे एक और चीज है, जानते हो क्या है? वो न तो मेरे व्याख्यान में आने वाला, न मेरी शकल में आने वाला, न मेरे नाम में आने वाला। उसका भाजन कौन बनता है? कोई कोई जो हृदय के नजदीक आए वही प्रेम का पात्र बनता है। हर एक आदमी प्रेम का पात्र नहीं बनता, ज्ञान का पात्र तो बन जाएगा। इसी प्रकार से इससे अतिरिक्त और कोई है नहीं छठा पदार्थ। नाम, रूप, ज्ञान, प्रेम और शक्ति, ब्रह्म के 5 अवयवों को 5 भागों में विभक्त कर दिया गया। नाम क्या है? कहा ओंकार। कहा ये क्या है? कहा गणानान्त्वा गणपति हंगवामहे। गणेश, श्री गणेश शायद भगवान का नाम। मेरी एक पुस्तक है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ओम लिखा हुआ है, लेकिन देखने से लगता है जैसे गणेश है। हिंदू धर्म सूत्र नाम की पुस्तक के ऊपर है वो। ओम में गणपति, ओम गणेश है। और इसी रूप से रूप जो है दुनिया में जहां तक रूप है वो केवल सूर्य से है। सूर्य की लाइट यहां न हो ना तो कोई किसी को देख नहीं सकता। आंख रूप को नहीं देख सकती यदि अंधेरा हो जाए तो। रूप का आधार सूर्य है। जैसे नाम को गणेश कहते हैं, ऐसे रूप को सूर्य कहते हैं, क्योंकि सूर्य ही रूप का आधार है। और इसके पश्चात रही शक्ति, तो शक्ति जो है अष्टधा प्रकृति में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, चित्त, बुद्धि, ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसी की शक्ति है दुनिया में। इसी से हम बोल रहे हैं, इसी से हम कह रहे हैं, इसी से आप सुन रहे हो। ये सब अष्टधा प्रकृति है। और वही अष्टधा प्रकृति की 8 भुजाएं बनती हैं और प्रकृति का एक नारी रूप बना दिया गया। हम उसको क्या कहने लगते हैं? दुर्गा। ये शक्ति है परमात्मा की, अष्टधा प्रकृति। और ज्ञान जो है उसको कहते हैं शिव, क्योंकि दुनिया में कल्याण होता है तो केवल ज्ञान से होता है और दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए नाम गणेश है, रूप सूर्य है, शक्ति दुर्गा है, ज्ञान शिव है। अब रह गया सबसे मुश्किल जिसको पाना होता है, उसका नाम है प्रेम। वो कौन है? कहा नारायण। नारायण जो है वही प्रेम है, वह प्रेम स्वरूप है। वही नारायण कृष्ण रूप में प्रकट होता है, वही नारायण राम रूप में प्रकट होता है। उसी को प्रेम का अधिपति देवता कहते हैं। और वो सबसे मुश्किल है उस तक पहुंचना। और इन 5 का बोध हो जाए
तब आप पूर्ण ब्रह्म का बोध प्राप्त करेंगे। यदि इनमें से एक का बोध हुआ तो अपूर्ण ब्रह्म का बोध होता है, अधूरा ज्ञान होता है। बात समझे? इसलिए अब इन पांचों में से किसी को आप पकड़ लें, नाम को पकड़ लें तब भी पहुंच जाएंगे, रूप को पकड़ लें तब भी पहुंच जाएंगे, ज्ञान को पकड़ लें तब भी पहुंच जाएंगे, शक्ति को पकड़ लें तब भी पहुंच जाएंगे, प्रेम को पकड़ लें तब भी पहुंच जाएंगे। पहुंचना वही है। इन पांचों में से किसी को पकड़ लें आप। इसीलिए हमारे यहां पंचदेव उपासना की व्यवस्था की गई। ये पांच देव अलग अलग नहीं हैं, एक ही के ये पांच भेद हैं, एक ही के पांच अवयव हैं, पांच अंग हैं, ऐसे आप समझ लो। और एको हम पंचधा जाता, भगवान कहते हैं एको हम पंचधा जाता, मैं एक होकर के इन पांच रूपों में प्रकट होता हूं। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे यहां इष्ट अब चुनने के लिए है तो सच्चिदानंद परमात्मा, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा इन पांच रूपों में प्रकट होता है, नाम, रूप, शक्ति, ज्ञान और प्रेम। ये बात समझे? इसमें से कोई भी आप अपना लें। इसलिए जब कोई व्यक्ति आता है तो उससे पूछते, भाई तुम्हारा इष्ट देव कौन है? मंत्र लेने के लिए पहले इष्ट का ज्ञान होना। अब वो इनमें से कोई इष्ट बता देता है अपना कि हमें मां में प्रेम है, हमें शंकर में प्रेम है, हमें राम कृष्ण नारायण सब एक ही, इनमें प्रेम है, हमें गणपति में प्रेम है। अलग अलग उपासना की प्रक्रियाएं, इनमें से किसी में एक में प्रेम हो जाए आपका, आप ब्रह्म तक पहुंचेंगे। अब इनके मंत्र हैं भिन्न भिन्न, क्योंकि शक्ति के लिए मंत्र अलग है, प्रेम के लिए मंत्र अलग है, ज्ञान के लिए मंत्र अलग है, रूप के लिए मंत्र अलग है, नाम के लिए मंत्र अलग है। सबके लिए अलग अलग मंत्र बने हुए। ये बात याद रखो। मंत्र की अलग सत्ता क्यों है? इसलिए आप जानते हैं बिजली एक है, यहां हमें जरूरत है प्रकाश की तो हमने लाइट जला रखी है। सर्दी होती तो यहां हीटर की भी जरूरत होती, उष्णता की भी, तो यहां हीटर जल जाता। और गर्मी ज्यादा हो जाए तो भारत में इस समय कूलर चलता है, पंखे चलते हैं। तो हीटर, कूलर, पंखा, लाइट, ये एक ही बिजली के अनेक कार्य हैं। अनेक यंत्र बन जाने से बिजली अनेक नहीं होती, एक ही बिजली अनेक रूपों में काम करती है। लेकिन जिसकी हमें जरूरत होती है उस यंत्र को हम पकड़ते हैं। ये नहीं बिजली वहां दूसरी आ गई, यंत्र अलग है। यदि एक ही बिजली अनेक यंत्रों को सक्रिय करती है तो भले आदमी परमात्मा तो बिजली का भी बाप है, उसका भी कारण है वो। इसलिए वो अनेक रूपों में किस प्रकार से प्रकट होकर कार्य करता है, आपके अभिष्ट की पूर्ति करता है, आप समझ सकते हो। इसलिए हमें इष्ट देव के मंत्र की जरूरत पड़ती है। जो आपको यानी पसंद है, जिस प्रकार के आपकी चित्त की अवस्था है, वैसे इष्ट देव आप पसंद करेंगे, उसके विपरीत कर ही नहीं सकते आप, याद रखो। और जिस इष्ट देव को आप पसंद करते हैं उसी के मंत्र की जरूरत होगी। अब मंत्र कैसे ग्रहण करना चाहिए, मंत्र क्या होता है? हमारे यहां मंत्र की परंपरा है, मंत्र की प्रक्रिया है। किताब से वही मंत्र पढ़ लो तो उसका कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए कि वो मंत्र जागृत नहीं होता। शब्द जो है, शब्द में शक्ति है, शब्द वाइब्रेट करता है, उसमें एक विशिष्ट शक्ति का आविर्भाव होता है। लेकिन वो कब होता है जानते हो? जब शब्द सिद्ध हो जाए तो। असिद्ध शब्द से कोई लाभ नहीं होता। और शब्द की सिद्धि के लिए हमारे यहां एक व्यवस्था दी गई शास्त्र में कि किसी मंत्र को ग्रहण करो, पहले तो मंत्र देने वाले का अधिकार उस मंत्र पर है कि नहीं है, ये देखना होता है। उसने उस मंत्र को सिद्ध किया है कि नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो उसको अधिकार नहीं उसको देने का। मंत्र सिद्ध कैसे किया जाता है? मंत्र का पुरस्चरण होता है। जितने अक्षर का मंत्र है उतने हजार रोज जप करके
108 दिन में एक पुरस्चरण होता है। पुरस्चरण के समय साधक जो है वह शैया जमीन पर सोता है, फलाहार करता है, संयमित रहता है, मन के विकारों को जीत करके एकांतवास करता हुआ 108 दिन तक अपने आप को साधता है। 108 दिन में जितने अक्षर का मंत्र है उतने हजार रोज जपने से उतने लाख पूरा होता है और उतने लाख का पुरस्चरण होता है। जैसे राम मंत्र 6 अक्षर का है तो 108 दिन में 6 लाख उसका जप होगा, तब उसका एक पुरस्चरण होगा। इस प्रकार से 4 पुरस्चरण करते हैं तब वो मंत्र सिद्ध होता है। एक पुरस्चरण में, 2 पुरस्चरण में, 3 पुरस्चरण में, 4 पुरस्चरण में, तब वो मंत्र पूरा होता है, सिद्ध होता है, उसका रूप बनता है। जैसे आप जानते हैं ना, आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है और फिर आपकी आत्मा है। ये आपका जीवन 4 भागों में विभक्त है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। गीता में भगवान ने इसको इसी ढंग से समझाया है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परमन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। तो 4 भागों में आपका जीवन विभक्त है और इसी को हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया कि ये 4 भाग जो है आपका, ये जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है और तुरीय है। और इसी को विश्व, ये आपका जो शरीर इसको विश्व कहा जाता है, आपका जो मन है इसको तेजस कहा जाता है, आपकी जो बुद्धि है उसको प्राज्ञ कहा जाता है और आपकी जो आत्मा है उसको तुरीय कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए 4 भागों में विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, बात समझे? ये 4 भेद हैं। और इसी प्रकार से आपको एक एक पुरस्चरण के साथ एक एक स्तर से ऊपर उठना होगा। पहले पुरस्चरण से आप शरीर से ऊपर उठेंगे, दूसरे पुरस्चरण से आप मन से ऊपर उठेंगे, तीसरे पुरस्चरण से आप बुद्धि से ऊपर उठेंगे और चौथे पुरण से आप आत्मनिष्ठ हो जाएंगे। ये 4 पुरस्चरण करने पर तब वो शब्द आपको सिद्ध होगा, शब्द के अर्थ का प्रकाश होगा और फिर आप अधिकारी बनेंगे दूसरे को मंत्र देने का। यहां तो किताब पढ़ पढ़ करके लोग मंत्र लिखते रहते हैं, साधना कौन करता है? गुरु बनने का आजकल बड़ा शौक हो गया है लोगों को। हाँ, बड़ा शौक हो गया है। वैसे नहीं तो किताब पढ़ करके मंत्र इकट्ठा कर लिए, आपने मंत्र से, मन से गढ़ करके मंत्र इकट्ठा कर लिए और वो लोगों को देते फिरते हैं और लोग जपते हैं और रोते हैं बाद में, क्योंकि एक ही एक सिखावत करत न आप, तुलसी राम भजन में बाधक पाप। तुलसीदास जी ने लिखा अपनी बरवे रामायण में कि एक दूसरे को सिखाते हैं लेकिन करते नहीं। जो दूसरे को मंत्र देगा वही कहेगा इसका जाप किया करना, उससे पूछो तुम कितना करते हो। भाई तुम इसे सिद्ध किया, तुम्हें अधिकार मिल गया इस मंत्र को देने का कि नहीं मिला? यदि नहीं मिला तो तुम दे नहीं सकते। इसलिए इसकी साधना बताई गई है। हर एक से मंत्र ले लेने मात्र से मंत्र सिद्ध नहीं होता, ये बात समझे? अब हमारे यहाँ एक भ्रांति अभी चल पड़ी, हम तो मंत्र ले लिया, हमने अमुक को गुरु बना लिया, अब हम क्या करें? शास्त्र में लिखा है गुरु का त्याग करोगे तो पतित हो जाओगे। किस प्रकार के गुरु का त्याग करना, पतित होना बताया गया, किस प्रकार के मंत्र की दीक्षा लेना बताया गया। शास्त्र की और बातों को पता है कि इतना ही पता है तुम्हें? यदि इतना ही पता है तुम्हें तो तुम्हें दुख से कोई उबार नहीं सकता, याद रखो। इसलिए इन सबकी शास्त्रों में व्यवस्था है साधना करने के लिए। यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मंत्र ग्रहण करते हो जिसको वो मंत्र सिद्ध है, जिसने 4 पुरस्चरण कर लिए हैं, वो मंत्र तुम्हारे शरीर में आते ही अपना काम करना शुरू कर देगा, शब्द सुनते ही उसका काम करना शुरू कर देगा और तुम अपने आप में एक विशिष्ट भाव, विशिष्ट गुण, विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन देखना शुरू कर दोगे। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका अभिप्राय यह है कि अभी तुम्हें कोई सही मानने में गुरु नहीं मिला जो
सही मंत्र देने का अधिकारी हो। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि मंत्र और इष्ट, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जो मंत्र अक्षर का समुदाय है और उस अक्षर में जो भाव अभिव्यक्त होता है उससे उस इष्ट की मूर्ति बन जाती है। ये बात याद रखो। और जो कुछ बनता है वो इसी सृष्टि में ही बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता। मंत्र जाप करने वाला जब भावपूर्ण होकर के उन अक्षरों का उच्चारण करता है तो अक्षरों के वाइब्रेशन से उस अक्षर के देवता की मूर्ति प्रकट होती है सामने। ये बात समझे? पतंजलि कहते हैं स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय माने मंत्र जाप करने से इष्ट देवता सामने आ जाता है। और यदि इष्ट देवता सामने नहीं आया तो समझ लो कि मंत्र जाप तूने नहीं किया ठीक से, कहीं गड़बड़ है। क्योंकि शास्त्र की वाणी में कोई गड़बड़ नहीं है। पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो इतना महत्व का है जिसमें कहीं भी व्यतिक्रम के लिए स्थान नहीं है, कहीं भी शंका के लिए स्थान नहीं है। उनका अनुभूत शास्त्र है, प्रैक्टिकल शास्त्र है। इसलिए जो पतंजलि कहते हैं कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, वहां पर याद रखो यदि तुम सही में स्वाध्याय माने मंत्र जाप से इष्ट देवता सामने प्रकट हो जाता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो मंत्र के शब्द के वाइब्रेशन से इस स्पेस के जो परमाणु हैं उस आकृति में परिणत हो जाते हैं और वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। और जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया है। यह जो स्थिति है साधना की, ये अभिष्ट प्राप्ति की, जब इष्ट देव के साथ संबंध हो जाता है तो अपने आप मृत्यु का भय चला जाता है, अपने आप अज्ञान नष्ट हो जाता है, अपने आप जीवन में सरसता आ जाती है। ये तीनों अपने आप, यानी सच्चित आनंद की अभिव्यक्ति स्वयं हो जाती है तुम्हारे जीवन में। अब गुरु ने मंत्र दिया, कबीर ने क्या लिखा जानते हो? गुरु से लीने मंत्र और नहीं कीने सत्संग, कह कबीर कोरी रही कैसे लागे रंग। गुरु बड़ा योग्य है, मंत्र तो दे दिया, मंत्र अपना काम भी करने लगा, लेकिन अब तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं कि 4 पुरुष चरण करो। एक भी नहीं होता, 4 तो बहुत दूर की बात है। शरीर से ऊपर उठकर मन में ही पहुंचने की अभी अभ्यास नहीं हुआ, तो आगे कैसे करोगे? इसलिए यदि आपने मंत्र ग्रहण करके उसका अभ्यास नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया उसका, तो उसके परिणाम स्वरूप इष्ट देवता का साक्षात्कार कैसे होगा? और मंत्र जपते समय जो आपका इष्ट है, क्या चाहते हैं आप, किसमें आपकी अनुरक्ति है, जिसको आप चाहते हैं उसे पाते हैं। यदि लगन के साथ, निष्ठा के साथ और शुद्ध प्रक्रिया के साथ आप करें तो ये उसका परिणाम है। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है और सच्चिदानंद ब्रह्म को ही पाने के लिए अनेक प्रकार के साधन किए जाते हैं। आप जो आज कर रहे हैं, अब तक करते आए हैं, आगे जो करेंगे वो केवल सच्चिदानंद को पाने के लिए करते हैं आप। लेकिन आप भूल में कर रहे हैं, अबोधता में कर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं। भगवान ने गीता में बात बताई कि जो लोग भूत प्रेत पिशाच की उपासना करते हैं वो भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञान बस गलत रास्ते से कर रहे हैं, इसलिए उनको गलत फल मिल जाता है। यदि सही रास्ते से करते तो सही फल मिल जाता उनको। करते वही हैं, वो करते मेरी ही उपासना है भगवान कर रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत है, उनका भाव गलत है, विधि गलत है। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं सब अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अभिष्ट केवल सच्चिदानंद के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता और न है, लेकिन रास्ता गलत अपना रखा है। यदि सही रास्ता अपना सकें और अपना लें, इष्ट के मंत्र को ग्रहण करके और उसकी अभ्यास, उसका स्वाध्याय, उसका जाप करना शुरू करें, साधना में प्रवृत्त हो जाएं, तो एक दिन आप अपने अभिष्ट को अपने जीवन में पा लेंगे। ये नहीं कि भगवान का मंत्र, जब इष्ट का मंत्र जपेंगे तो केवल मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, ना, आपके इसी जीवन में सत चित आनंद का प्रकाश हो जाएगा।
आपका जीवन रसमय बन जाएगा, आपका जीवन अंधकार से मुक्त हो जाएगा, ज्ञानमय बन जाएगा, और आपके जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए चला जाएगा। ये तीनों समाप्त हो जाएंगे और आप अपने लिए और दुनिया के लिए वरदान सिद्ध होंगे। आप जरा सोचिए, जिसके जीवन में प्रेम का प्रवाह बह जाए, जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, क्या समाज के लिए वो अभिशाप बन सकता है? क्या उससे कभी कोई बुरा कर्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि आप अपने जीवन के अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधना करें, इस प्रकार के मार्ग को ग्रहण करें, समझ करके, सोच करके, अज्ञानता में नहीं। एक तीसरा प्रश्न और खड़ा होता है कि अभिष्ट समझ गए, मंत्र समझ गए, मंत्र सदगुरु से प्राप्त होता है ये भी समझ गए, लेकिन सदगुरु को कहां ढूंढने जाए सत्तू लेकर? कहां ढूंढे? और सदगुरु को पाने का रास्ता क्या है? शास्त्रकारों ने बताया उसके दो रास्ते हैं। एक तो सही माने में सदगुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे माता पिता जन्म से पहले निश्चित होते हैं, ऐसे ही यदि आप धैर्य धारण करके भगवान से प्रार्थना करें तो सदगुरु भी आपको मिल जाता है। आप अपने माता पिता को ढूंढने गए थे? ढूंढने तो नहीं गए ना। गुरु की भी प्राप्ति होती है, जिसके शब्द, जिसके विचार सुनते ही आपका हृदय बरबस अपने आप को रोक न सके, उधर दौड़ पड़े, वो आपका सदगुरु है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी रहा है, जो रास्ता उपनिषदों में हमारे यहां बताया गया। उसमें बताया गया कि आपके जीवन में यदि कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न लेकर के आप जगह जगह जाइए महापुरुषों के पास। जहां उस प्रश्न का समाधान हो जाए, याद रखो तुम्हारा गुरु है। और जब तक उस प्रश्न का समाधान न हो, तब तक किसी को गुरु स्वीकार मत करो। जो अपना गुरु है पिछले जन्म का, वो जब मिल जाता है तो उसको देखते ही सारे शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं, शंका उठती ही नहीं। तुम ढेर सारी शंका इकट्ठा करके ले जाओ, जब गुरु के सामने जाओगे तुम्हारी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी, उठाएंगे नहीं, क्योंकि वहां शंका उठ नहीं सकती। हाँ, यदि तुम्हें नए सदगुरु की तलाश करनी है, पहले सदगुरु पहले का नहीं है, नया, क्योंकि साधना में नए भी प्रवृत्ति होती है ना, पहले की प्रवृत्ति होती है। भगवान ने बताया कि जब तुम पहले से साधना में लगे हुए हो, तो जहां से तुम्हारी साधना छूटी हुई है, उस जन्म में वहीं से प्रारंभ हो जाएगी, और वो गुरु जिसके प्रकाश में तुम साधन कर रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। कभी कभी मैं हंसी में कहता हूं कि भाई शिष्यों की तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन गुरु की मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? शास्त्रकारों ने बताया कि एक कल्प तक उनको आते जाते रहना पड़ता है, लेकिन उनके आने जाने में कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन मैं समझा रहा था, एक दिन मैं बता रहा था अपने जीवन की एक घटना। उदयपुर नाम का एक शहर है जहां मेरा आश्रम है, वहां मेरा रोज सत्संग होता था। एक जेलर हमारे पास रोज आया करते थे सत्संग में। एक दिन आकर मेरे से प्रार्थना की, गुरुदेव आपको एक दिन कृष्ण मंदिर चलना पड़ेगा। कृष्ण मंदिर? बोले आपका कोई मंदिर बनवाया क्या? कहता हमने नहीं बनवाया, तो सरकार ने बनवाया। हम कहा सरकार भारत की कृष्ण मंदिर कैसे बनवा दिया? कहने लगा आप तो जानते हो, बिना कृष्ण मंदिर के कल्याण कहाँ है भारत का? कृष्ण मंदिर जानते हो? कारागार, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, कारागार, जेल। तो मैं हंसने लगा, हम कहा अच्छा जरूर चलेंगे। तो कहने लगा कि महाराज मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं है, क्षमा करना, मेरी गाड़ी आएगी, मैं आऊंगा, आपको ले जाऊंगा।
तो मेरे कुछ शिष्य इकट्ठा होकर वहां आ गए। जिस दिन जाना था मुझे बोलने वहां, वो गाड़ी ले आया। वो गाड़ी ले आया जाली वाली, जिसमें पकड़ कर कैदियों को ले जाता है। हाँ? आगे वो बिस्तर उस्तर लगा रखा था, हमें बैठा लिया, पीछे सारे हमारे साथी बैठ गए। और जब हम जाने लगे तो गली से जब गुजरे, सड़क से जो देखा वो सब अरे वो तो महाराज महाराज जेल वाली गाड़ी में जा रहे थे आज। अब लोग आकर के आश्रम में बार बार पूछने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। महाराज महाराज जेल में व्याख्यान देने गए। तो मैं वहां पर जाकर कैदियों से बताया। हम कहा कि देखो, इस समय जहां मैं बैठा हूं वहीं तुम लोग बैठे हुए हो, लेकिन मैं अपने राजी से आया हूं, तुम लोग मजबूरी में आए हो। हमें जेलर साहब स्वागत जाकर ले आए और स्वागत करके छोड़ेंगे। जब यहाँ आया तब भी हार पहन आया। हो सकता है मेरे संस्कार में रहा हो कि एक दिन के लिए जेल जाना है। लेकिन तुम लोगों ऐसा जेल जाना नहीं हुआ मेरा। इसी प्रकार से महापुरुष जो है, महात्मा जो है, इस संसार में भी आते हैं। कुछ लोग अपने कर्म को भोगने आते हैं, महात्मा कोई कर्म नहीं होता, वो तो संसार में लोगों के कल्याण के लिए आते हैं, और जब रुचि होती तब आते हैं, जब रुचि होती तब चले जाते हैं। उनका जाना अपनी रुचि से होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सदगुरु की तलाश में यदि आपका जीवन प्रारंभ हो रहा है साधना के लिए, तो आपके हृदय में यदि संशय है, संदेह है, तो संदेह लेकर के आप जाइए। और जब तक आपके संदेह का समाधान न हो, तब तक आप किसी को गुरु स्वीकार मत कीजिए। याद रखिए मेरी बात। और यदि करेंगे तो धोखा मिलेगा। और जो ये कहे कि ये जान दो, शंका उनका नहीं करनी चाहिए, अरे तुम तो केवल भगवान भजन करो तुम्हारा कल्याण हो जाए, जान लेना कि ये ठग है और हमें बहका रहा है। सदगुरु कभी नहीं कह सकता कि शंका मत करो, वो कहेगा कि शंका करो। अरे तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ है उसको गंध निकालें। सफाई तो वहीं से शुरू होती है ना। यदि डाउट तुम्हारा बना हुआ है, याद रखो, व्हाट इज द साइन ऑफ डिवाइन लाइफ? The question and answer is doubtless knowledge, lustless love, and desireless service is the sign of divine life. If you are leading divine life, be aware you must try to achieve this state. Doubtless knowledge, lustless love, and desireless service. Then you will be divine person. बात समझे? वासना रहित प्रेम, स्वार्थ रहित सेवा और संदेह रहित ज्ञान यदि आपके जीवन में प्रकट हो जाए तो आप समझ लेना कि अब आप पूर्ण हो गए। इसलिए संदेह को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। तो सदगुरु की शरण में जाते ही संदेह नष्ट हो जाता है, साधना करने से वासना नष्ट हो जाती है, और फिर सहज रूप से समाज को परमात्मा का स्वरूप समझ करके सेवा करने की भावना जागृत हो जाती है। ये तीनों गुण आप में अपने आप आ जाएंगे। लेकिन संदेह को भगवान दूर नहीं करेगा, वो गुरु दूर करेगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा धन्ना जाट का, सुना? तो धन्ना जाट भगवान का अनन्य भक्त बन गया। पूर्व जन्म के संस्कार थे उसके, भगवान की उपासना करने लगा और उसके हट पर भगवान प्रकट हो गए। अब वो भगवान के साथ खाता था, खेलता था, बात करता था, कभी कभी हल चलाता था तो भगवान उसके साथ साथ रहते थे। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन उसे डाउट हो गया। डाउट कैसे हुआ? कहीं गया, सुना कि जिसको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है उसके सारे संदेह मिट जाते हैं। अब वो आया तो उसने कहा कि मैं पूछूंगा वो कन्हैया जो मेरे साथ खेलता है, रहता है, वो असली भगवान है या नकली? तो उस दिन जब भगवान वो गया खेतों में, भगवान प्रकट हो गए, आ गए उसके साथ। कहो धन्ना कैसे हो?
कहा यार मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है। भगवान मुस्कुराए, भाई हमारे में क्या गड़बड़ी है? धन्ना ने कहा तू ये बता, तू असली भगवान है या नकली? भगवान ने कहा भाई भगवान तो भगवान होता है, उसमें असली नकली क्या है? कहता ना, हमने सुना है जहां भगवान होता है वहां संदेह नहीं होता, वहां तो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो यदि तुम असली भगवान होता तो मेरे में तो अभी अज्ञान बना हुआ है, इतने दिन से तुम मेरे साथ रहता, मेरे में ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं हुआ? भगवान मुस्कुराए, कहा धन्ना तूने जो सुना वो भी सत्य है, और मैं असली भगवान हूं ये भी सत्य है। लेकिन जो तुम्हें संदेह हुआ है, इस संदेह को मैं दूर नहीं कर सकता। तुम मुझसे प्यार करता है, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, लेकिन संदेह को दूर करना ये मेरा काम नहीं है। कहा ये किसका काम है? कहा ये तो गुरु का काम है। कहा तो आप मेरे गुरु बन जाइए। कहा मैं किसी का गुरु नहीं बनता। गुरु तो गुरु होता है। तो कहा भगवान ये तो आप जानते हो कि मेरा गुरु कौन है, मैं कहां जाऊं गुरु ढूंढने? भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु को मैं पहचानता हूं। कौन है मेरा गुरु? कहा स्वामी रामानंद। कहां रहते हैं? कहा बनारस में। स्वामी रामानंद के पास जाओ, वही तुम्हारे गुरु हैं, उनके पास जाकर के तुम्हारा संदेह नष्ट हो जाएगा और तुम तब समझ पाओगे कि मैं असली भगवान हूं या नकली। इससे पहले नहीं। धन्ना वहां से चला, काशी गया। आप लोगों ने सुना होगा कि स्वामी रामानंद के 16 शिष्यों में, मुख्य शिष्यों में एक धन्ना भी था, जो कबीर के गुरु थे, जो नानक के गुरु थे, जो रविदास के गुरु थे, जो नरसिंह मेहता के गुरु थे। वो स्वामी रामानंद धन्ना के गुरु थे। तो मेरे कहने का प्राय कि गुरु का काम है संदेह नाश करना। संदेह नाश होने से जब साधन में तुम लगोगे तो परमात्मा का काम है तुम्हारे हृदय में प्रकाश करना, तुम्हारे हृदय को रस से पूर्ण कर देना। तुम्हारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और उसके पश्चात जब निर्वासनिक हो जाओगे तब सहज रूप में तुम्हें ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगेगा और तुम इस ब्रह्मांड की सेवा में लग जाओगे। तो तुम्हारी स्वार्थ रहित क्रिया होगी। तो स्वार्थ रहित सेवा, वासना रहित प्रेम और संशय रहित ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन की पूर्णता का स्वरूप है। इसलिए आज के इस सत्संग से आप लोगों को पता चल गया होगा कि गुरु मंत्र क्या है, गुरु कौन है? जिसने शब्द को सिद्ध किया। गुरु मंत्र क्या है? जो ऐसे सिद्ध किए हुए शब्द का देने वाला, गुरु मुख से सुना जाए वो मंत्र होता है। किताब में मंत्र नहीं होता, किताब पढ़ करके मंत्र नहीं लिया जाता। गुरु मुख से जो सुना जाए वो मंत्र होता है। और मंत्र का अभ्यास कैसे किया जाए? जैसे मैंने बताया पुरस्चरण के द्वारा। और पुरस्चरण के द्वारा जब अभ्यास करोगे तब वो मंत्र तुम्हारे लिए सिद्ध होकर तुम्हारा हित साधन करेगा। ये है गुरु मंत्र, मंत्र का स्वरूप और मंत्र का प्रयोजन और जीवन का इष्ट देव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम दूंगा। 9 बज गया, अब प्रार्थना कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।